Hello students, today we are going to learn a new lesson, Omana's journey. Let's start. Omana and her best friend Radha were very excited. Omana और उसकी पक्की दोस्त राधा बहुत खुश थी. They were going on a train trip to Kerala. वे दोनों ट्रेन से केरल की यात्रा पर जा रहे थे. Omana was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. ओमाना अपनी दादी के घर जा रही थी और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी. Omana's father had gone to book train tickets for both the families. ओमाना के पिताजी दोनों परिवार के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए गए थे. Then, just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. Her leg was put in plaster. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. तभी उनकी यात्रा से ठीक 2 दिन पहले राधा अपने साइकिल से नीचे गिर गई और उसकी राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया था और उसकी लेग पर प्लास्टर लगा दिया गया था. डॉक्टर ने कहा था कि उसे 6 हफ्तों के लिए टांग को हिलाना नहीं है. Radha's family had to cancel their tickets. The two friends were very sad. राधा के परिवार को ट्रेन की टिकट कैंसिल करवानी पड़ी थी. दो दोस्त बहुत उदास हो गए थे. They had made so many plans about what they would do together on the trip. उन्होंने इस ट्रेन ट्रिप के लिए काफी सारे प्लान बनाए थे कि वे दोनों इस यात्रा में साथ रहकर क्या-क्या करेंगे. Then Radha's amma had an idea. Omana, why don't you write down everything about your trip in a diary? तभी राधा की अम्मा ने एक उन्हें आइडिया बताया. ओमाना, क्यों ना तुम यात्रा के बारे में हर चीज को एक डायरी में लिख लो. Then when you come back, Radha can read all about your trip. This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. और जब तुम वापस आओगी तो राधा तुम्हारी यात्रा के बारे में पढ़ सकती है और इस तरह तुम कुछ भूलोगी भी नहीं और तुम्हें यह ट्रेन में टाइम पास के लिए हेल्प भी करेगा. Both the friends thought this was a good idea. Omana went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. Here are some pages from Omana's diary for you to read. दोनों दोस्तों ने सोचा यह एक अच्छा आइडिया है. ओमाना अपने घर गई और अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए एक खाली पेज वाली नोटबुक उसने ढूंढ ली. यहाँ कुछ ओमाना की डायरी के पेजेस तुम्हें दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं. ओमाना की यात्रा स्टार्ट होती है 16 मई को और टाइम है 11:35. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे तो हमने हमारा नाम रिजर्वेशन चार्ट में चेक किया. What is reservation chart? Let's know. Reservation chart shows the list of passengers going to board a particular train. रिजर्वेशन चार्ट बच्चों इसको हिंदी में आरक्षण सूची भी कहा जाता है. यह एक जो ट्रेन जिसमें यात्री यात्रा कर रहे होते हैं उसमें यात्रियों की डिटेल इस रिजर्वेशन चार्ट में प्रिंट की जाती है. Soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और हमने देखा कि कोच तो पहले से ही भरा हुआ था. Let's know about platform.
A railway platforms an area alongside a railway track providing access to trains. रेलवे प्लेटफॉर्म रेलवे लाइन के साथ एक एरिया होता है जो ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए हमें हेल्प करता है. The train had started early in the morning from the Gandhidham in Kutch. सुबह ही ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी. Gandhidham is a city in Kutch district and this is the map of Gujarat. When the train came there was so much confusion. जब ट्रेन स्टेशन पर आ गई तो वहां बहुत सारा कंफ्यूजन था. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside all from one door. कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ लोग चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का मार रहे थे और अपना सामान रखने के लिए कोशिश कर रहे थे और ये सब हो रहा था एक ही खिड़की से, एक ही दरवाजे से. We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. हम जैसे तैसे गाड़ी में चढ़ गए और सीट ढूंढकर अपना सामान भी सीट के नीचे रख दिया. जब तक ट्रेन स्टार्ट हुई तो ज्यादातर लोगों ने सीट ढूंढकर अपने सामान को भी व्यवस्थित कर दिया था. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in proper seats. कुछ समय बाद टिकट कलेक्टर आए और उन्होंने हमारी टिकट को भी चेक किया और देखा कि हम हमारी सीट पर अच्छे से बैठ गए हैं. देखिए बच्चों अब टिकट कलेक्टर के बारे में. टिकट कलेक्टर वो होता है जो ट्रेन में पैसेंजर की टिकट को चेक करता है और उन पर मार्क भी कर देता है ताकि कोई इसका रीयूज न कर सके. अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ्स, उन्नी एंड आई हैव द मिडल बर्थ्स. अम्मा और अप्पा लोअर बर्थ पे बैठे थे, उन्नी और मैं मिडल बर्थ पे बैठे थे. उन्नी कौन है बच्चों? उन्नी ओमाना का भाई है. There are two college students who have the upper berths. On the other berths, there is a family with two children. They seem to be about our age. I will go and talk to them later. वहाँ कुछ दो कॉलेज के दोस्त बैठे हुए थे ऊपर की सीट पर और बर्थ के दूसरी तरफ एक फैमिली अपने दो बच्चों के साथ बैठी हुई थी. वे बच्चे भी हमारी उम्र के लग रहे थे. मैं बाद में जाकर उनसे बात करूंगी. Let's know about lower berth, middle berth and upper berth. देखिए बच्चों जो 1 नंबर एंड 4 नंबर सीट है इसे बोलते हैं लोअर बर्थ और जो 2 नंबर और 5 नंबर सीट है इसे बोलते हैं मिडल बर्थ और जो 3 नंबर एंड 6 नंबर सीट है इसे बोलते हैं अपर बर्थ एंड साइड अपर एंड साइड लोअर बर्थ. ये जो नीचे की सीट है इसे बोला जाता है साइड लोअर बर्थ और इससे जो ऊपर की सीट है उसे बोला जाता है साइड अपर बर्थ. Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey just as I had promised you. I will stop now because Amma has opened the tiffin box. मैं अब खिड़की के पास बैठी हूँ और मैंने यात्रा के बारे में लिखना शुरू कर दिया है जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था. मैं अब लिखना बंद करूंगी क्योंकि अम्मा ने टिफिन बॉक्स को ओपन कर लिया है. Amma had packed a lot of food
Dhokla with chutney, lemon rice and some mithai. Mouth is watering. I will write more later. अम्मा खूब सारा खाना पैक करके लाई है। ढोकला विद चटनी, चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और कुछ मिठाई भी। मेरे मुंह में पानी आ गया है, मैं अब इसे बाद में लिखूंगी। 16 मई और टाइम है 4:30। After lunch, some people slept, but I was not sleepy. I kept looking out of the window. दोपहर के खाने के बाद कुछ लोग सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। I saw many fields. They all were brown and dry. Sometimes we passed small villages. मैंने कई सारे खेत देखे, लेकिन वे सूखे और भूरे कलर के लग रहे थे और कभी-कभी हम छोटे-छोटे गांवों से भी होकर गुजरे। They seem to be flying by. Do you know that when the train is at a very high speed, things outside seem to be running in the opposite direction? वे ऐसा लग रहा था कि वे उड़े जा रहे हैं। Do you know that when the train is at a very high speed, things outside seem to be running in the opposite direction? क्या तुम जानते हो जब ट्रेन अपनी हाई स्पीड पर होती है तो बाहर की चीजें हमें अपोजिट डायरेक्शन में भागती हुई नजर आती है। Earlier it was really hot. Now that it is evening there is some breeze. कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है तो हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी है। The sun is slowly setting and the sky has become orange. I have never seen it look like this in Ahmedabad. सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है और आसमान भी ऑरेंज कलर का हो गया है। मैंने सूरज को अस्त होता हुआ अहमदाबाद में कभी नहीं देखा। We have just passed a station called Valsad. The train stopped for only 2 minutes. हम वलसाड स्टेशन से गुजरे हैं और ट्रेन यहाँ पर केवल 2 मिनट के लिए रुकी है। एंड यू कैन वॉच दिस इज मैप ऑफ गुजरात। और आप बच्चों देख सकते हैं वलसाड जो कि गुजरात का एक जिला है इस मैप में। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वाज सो मच नॉइस। लेकिन इन्हीं 2 मिनट में बहुत सारा वाशोर हो रहा था। जैसे कि कोई कह रहा था चाय, गर्म चाय। वन मैन वाज कॉलिंग बटाटा वड़ा, पूरी शाक, दूध, ठंडा दूध। और एक आदमी कह रहा था या वो बेच रहा था बटाटा वड़ा, पूरी शाक, दूध, ठंडा दूध। People were selling and buying food on the platform. We quickly bought some bananas and chicos through the window itself. कुछ लोग खाना प्लेटफॉर्म पर बेच रहे थे, कुछ लोग खाना खरीद रहे थे। हमने भी खिड़की से जल्दी से कुछ केला और कुछ चीकू खरीद लिए हैं। 16 मई और टाइम है 8:30। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड एन, दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कॉरिकोड। मैंने भी कुछ दोस्त बना लिए हैं और उनके नाम हैं सुनील और एन। वे दोनों अपनी दादी के घर कॉरिकोड में जा रहे हैं। और कॉरिकोड कहाँ है बच्चों? कॉरिकोड केरला में है। सुनील हैज गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। सुनील ने मुझे कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए दी है। A little while ago I went to brush my teeth, but there was no water in the bathroom. Somebody said that it will only be filled at the next big station.
मैं थोड़ी देर पहले ब्रश करने बाथरूम गई थी पर वहां पानी नहीं था। किसी ने कहा है कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।